ਹੈਲੋ एवरीवन। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਿ CBSE ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ 5 ਮਾਰਕਸ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, 30 ਡਿਗਰੀ, 45 ਡਿਗਰੀ, 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1.2, 45 ਤੇ 1/√2, 60 ਤੇ √3/2 ਐਂਡ 90 ਤੇ 1। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 0 ਡਿਗਰੀ, 30 ਡਿਗਰੀ, 45 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਜਾਂ ਬੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away। जो point है कितने मीटर अवे है? 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। find the height of the tower। इस टावर ਦੀ हाइट पूछी गई है कि कितनी है, ठीक है। ग्राउंड तो ये ग्राउंड है, ठीक है। ਜਦੋਂ ग्राउंड तो 30 मीटर दूर जाके ਇੱਥੋਂ ਇਸ टॉप ਤੇ देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਸ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, बेस है जो गिवन है दैट इज 30 मीटर, थीटा दैट इज 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर असी फाइंड करना है, उसनों आपां एच मान लेने आ। इस हाइट नूं आपां मन्नांगे एच मीटर, ठीक है। सो फिर फॉर्मूला की लगावांगे इत्थे आपां टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों। सो हुण आपां इत्थे वैल्यूज़ पुट करते हैं। टैन थीटा कितना दिता होया? टैन थीटा इज़
30 डिग्री। परपेंडिकुलर सानू नहीं पता, बेस की वैल्यू साडे को 30 मीटर है। ठीक है, हुण आपां tan 30 की वैल्यू लिखते हैं। tan 30 ते वैल्यू होंदी है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई √3। h की वैल्यू किवें कड्डोगे, h इज इक्वल्स टू अपॉन √3। हुण इसनूं सॉल्व करन दा की तरीका, इसनूं सॉल्व करन दा देखो बहुत ईजी वे है। 30 अपॉन √3। हुण मान लो जेकर आप इस वैल्यू नूं 1 दे नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो आंसर साडे को सेम 30 अपॉन √3 आएगा। सो 1 नूं आपां की लिख सकते हैं। हुण एक चीज़ होर सुनो, जदों √3 नूं किसी भी रूट नाल डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा। तो जदों √3 नूं √3 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, किसी भी रूट दे नाल आपां मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिजिट हुंदा है इत्थे रूट दे विच ओही साडे कोल आंसर आ जाता है। सो हुण इदां ही करांगे, इस वैल्यू नूं आपां √3 दे नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर दांगे। उत्ते जदों मल्टीप्लाई करांगे 30 √3 आ गया, नीचे √3 मल्टीप्लाई हो गए 3 नूं 30 नाल कट करांगे तो 10 √3। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ आंसर लिख सकते हो, नहीं तो फिर एक स्टैप होर अगे चलते हैं। √3 की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ 1.732। इत्थे तुसीं दो वैल्यूज़ जरूर याद रखियो, √2 की ते √3 की। √2 की वैल्यू की हुंदी है 1.414 ते √3 की वैल्यू की हुंदी 1.732। सो 10 मल्टीप्लाई करांगे 1.732। सो साडे को हुण आंसर की आएगा, हुण साडे को आंसर आएगा 17.32 मीटर। दैट इज़ हाइट। किस दी हाइट आई है ये, टावर दी हाइट। हुण आपां करदे हां सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन दे विच की है देखो, जो सैकेंड क्वेश्चन है उस दे विच अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। काइट है, कोई फ्लाई कर रहा है 60 मीटर उत्ते अबव द ग्राउंड तो, मतलब कि ग्राउंड तो लेके काइट तक दा जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टैंपरेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इत्थे किसी पॉइंट ते स्ट्रिंग नूं टाई किया होया, बन्निया होया। द इंक्लीनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। जो इंक्लीनेशन है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है साडा, वो 60 डिग्री का है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपां स्ट्रिंग की लेंथ पर फाइंड करनी, यानी कि एच हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अज्यूम दैट देयर इज़ अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग दे विच कोई भी ढिल नहीं है, जिवें आ इत्थे शो होया ना, ये चीज़ नहीं है, पूरा स्ट्रिंग सीधा आ। ठीक है, सो ये चीज़ आपां नूं दित्ती हुई है। हुण आप देखो इस दे विच गिवन की है, इस दे विच गिवन है सानू परपेंडिकुलर। ठीक है, P इज़ गिवन दैट इज़ 60 मीटर, थीटा इज़ गिवन दैट इज़ 60 डिग्री, हाइपोटेन्यूज फाइंड करन नूं कहा गया। हुण इत्थे किहड़ा फॉर्मूला लग सकदा, देखो P अपॉन H दैट इज़ साइन थीटा। हुण आपां इत्थे इस नूं सॉल्व करांगे। थीटा की वैल्यू की दी हुई है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। थीटा इज़ 60 डिग्री एंड साइन थीटा लिख लें उसनों आपां। साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, परपेंडिकुलर 60 है तो हाइपोटेन्यूज सानू गिवन नहीं है। सो हुण आपां इत्थे वैल्यू लिखते हैं 60 की वैल्यू कितनी हुंदी है, जदों आपां साइन 60 की वैल्यू नूं देखते हैं तो कितनी है, देखो साइन 60 की वैल्यू हुंदी है साडी √3/2। सो हुण आपां यही वैल्यू इत्थे पुट करांगे। ठीक है, √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन H। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 2,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, h इज इक्वल्स टू 120/√3। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, √3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ डिवाइड। फिर की होएगा 120 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा उत्ते, नीचे साढ़े को 3 बन जाएगा क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करांगे तो 3 नू 120 ना कट करोगे आंसर आएगा तो को 40, यानी कि 40√3। ये आ गई साढ़े को हाइट लेंथ किसकी आई, हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 40√3। सो ये सी साडा सैकेंड क्वेश्चन। हुण करते हैं आप अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे विच की है, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, ठीक है, 30 डिग्री। बिल्डिंग दे जो टावर है, टावर दे इस पॉइंट तो जो बिल्डिंग ते देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल है। अदरवाइज जो टावर दे नाल साडा बिल्डिंग तो देखते हैं जो असी 60 डिग्री का एंगल है। ये है ग्राउंड दैट इज़ बेस, ये है टावर। टावर की हाइट है जो सानू दिती हुई है 50 मीटर। टावर की हाइट गिवन है बट सानू बिल्डिंग की हाइट नहीं दिती हुई, ये असी पता करनी है। सो किवें पता करांगे, इस दे विच भी देखो एक तो परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, दोनों दे विच बेस का काम है। हाइपोटेन्यूज का दोनों दे विच कोई काम नहीं है। हाइपोटेन्यूज नूं नहीं फाइंड करांगे, आपां की फाइंड करांगे, बेस ते थीटा सानू गिवन है। सो सॉल्व करते हैं इसनूं। इस दे विच किवें सॉल्व करोगे, देखो हुण तुसीं tan थीटा कर दिओ, tan थीटा P अपॉन B हुंदा है, ठीक है। लेकिन इस दे विच आपां की करांगे, कॉट थीटा की होएगा फिर बेस अपॉन हाइट, क्योंकि कॉट किसका उल्टा हुंदा है, टैन दा। सो इसनूं रेसिप्रोकल करके लिख लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू की है, थीटा की वैल्यू है साडे कोल फर्स्ट केस दे विच 60 डिग्री लिख लो, ठीक है, जिस दे विच इस पॉइंट नूं आपां ए मान लैंदे आ, इसनूं B ते ए साडे कोल C आ गया, ए D, ठीक है। सो AB अपॉन BC, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होंदी है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB इज़ नॉट गिवन, सो BC की वैल्यू कितनी है 50 मीटर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इत्थों साडे कोल जो AB की वैल्यू आंदी है वो आंदी है 50 मीटर अपॉन √3। इस आपां केस नंबर 1 मान लैंदे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है साडे कोल। सैकेंड दे विच की है, देखो सैकेंड दे विच साडे कोल फिर तो कॉट थीटा लवांगे इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD। इस दे विच भी देखो थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, AB की वैल्यू गिवन नहीं है, तो DA की वैल्यू भी असी फाइंड करनी है, उसनों आपां H मान लैंदे हैं इसनूं, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, रूट कॉट 30 डिग्री ते वैल्यू कितनी होंदी है √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन H। इस केस दे विच साडे कोल जो वैल्यू आंदी है AB दी वो आएगी H√3। हुण सैकेंड इक्वेशन बन गई, इसनूं किवें सॉल्व करांगे, हुण आपां इक्वेट कर दांगे AB नूं ही AB दे नाल, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन नूं सैकेंड दे नाल। 50 मीटर अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H√3। देखो H इसी साइड रहेगा, √3 इस नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 दे नाल डिवाइड ते √3 दे नाल मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू H। फिर साढ़े को आंसर क्या आएगा 50 अपॉन 3 √3 इज इक्वल्स टू 3 हुंदा H। जो इसनूं डिवाइड करोगे सो आंसर आएगा 16 2/3 मीटर। सो ये साढ़े को की आ गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई 16/2/3। हुण करते हैं नैक्सट क्वेश्चन।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਰੋਮ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਟॉप ਆਫ ਦ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟॉप ਐਂਡ bottom and top of the transmission tower fixed at top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of tower। देखो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ that is 20 meter, ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਟਾਵਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ 20 + h। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ ABC, ਠੀਕ ਹੈ, AB ਤੇ C ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪ ਤੱਕ। ਇਸ ਨੂੰ बेस अपॉन परपेंडिकुलर करांगे इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट कितना दिता होया इत्थे 45 डिग्री, ठीक है। हुण कॉट की वैल्यू 45 डिग्री ते कितनी हुंदी है, पहला AB लिख लो, AB इज़ नॉट गिवन, BC की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री ते हुंदा 1, ठीक है। सो साडे कोल सिंपल AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि 20 जो 1 दे नाल मल्टीप्लाई होएगा 21 = 20। दूजे ਆਪਾਂ ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABD, इस दे विच देखो AB अपॉन BD इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री, क्योंकि दूजा जो एंगल है वो साडे कोल 60 डिग्री का है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 60 डिग्री ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। cot 60 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। BD ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲਵਾਂਗੇ 20 + h। ਹੁਣ 20 + h ਕਿਉਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਹਾਈਟ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਾਵਰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ h ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ cot 60 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/√3, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इत्थों साडे कोल आ जाएगी AB दी वैल्यू, AB दी वैल्यू कितनी आएगी हुण 20 + h अपॉन √3, ये बन गई साडे कोल इक्वेशन नंबर 2, ये सी साडे कोल 1। जो दोनों नूं इक्वेट करांगे सो फिर साडे कोल आंसर की आएगा, देखो पहला AB नूं इज इक्वल्स टू AB दे करते हैं, यानी कि 20 इज इक्वल्स टू 20 + h अपॉन √3, ठीक हो गया। √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20/√3 इज इक्वल्स टू 20 + h, ओके। हुण आपां वेरीएबल्स नूं अलग कर लेने आ ते कॉन्स्टेंट्स नूं अलग। h इज़ अ वेरीएबल, h नूं साइड ते कर लो, कि इत्थे साडे को जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20/√3, इधर 20 प्लस दा इधर आके की हो जाएगा माइनस दा, h इज इक्वल्स टू 20 कॉमन निकाल कड्डो √3 - 1, फिर इसनों आपां किवें सॉल्व करांगे 20 √3 की वैल्यू 1.732 - 1, जो इन्हां नूं माइनस करते हैं फिर साडे को आंदा है 20 एंड 1 दे विचों 1 नूं माइनस करोगे 0.732, इन्हां दोनों नूं आपस च मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 14.64। सो ये आ गई साडे कोल हाइट ऑफ टावर, जो टावर सी उसकी हाइट कितनी आई 14.64 मीटर, ठीक है। ये साडा हो गया इसका आंसर। जो साडा नैक्सट क्वेश्चन है उस दे विच देखो डायग्राम इत्थे मैं ड्रॉ कर दी हाँ। इसका डायग्राम मैं पहला ड्रॉ नहीं किया क्योंकि थोड़ा जा ही थोनों डिफिकल्ट लगेगा। देखो इस केस दे विच की दिता होया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहला आप 7 मीटर हाई
बिल्डिंग बनावांगे। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। हुण जे इस तरफ तो 7 मीटर है तो इस तरफ तो भी 7 मीटर होएगी, ठीक है। फिर कहंदा द एंगल ऑफ एलीवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਬਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ 60 डिग्री ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 60 डिग्री, ठीक है। फिर कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रैशन, जो एंगल ऑफ डिप्रैशन बनता है फुट ऑफ द बिल्डिंग तो देखिए तो 45 डिग्री का बन रहा है जो इस साइड देखते हैं। जो ए वाला एंगल वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, असी हाइट कढ़नी है टावर की। सेम टू सेम है तो उत्ते वाले क्वेश्चन नाल दा, बट थोड़ा जा डिफरेंट है। देखो इस दे विच जदों ये 7 मीटर्स है, हाइट ऑफ टावर नहीं गिवन तो इसनों आपां एच मीटर मान लांगे। तो टोटल हाइट जदों असीं लवांगे फिर कितनी लवांगे? एच प्लस 7 या 7 प्लस एच, ठीक है। हाइट ऑफ अ टावर होगी वो प्रॉपर पूरी ग्राउंड तो लैके टॉप ऑफ द टावर तक। हुण इस केस दे विच पहलां आपां इसनूं ए बी सी डी एंड ई लेबल कर लिया। हुण देखो पहला ट्रायंगल लवांगे आपां इत्थे बी ए ई, ठीक है। बी ए ई इत्थे ग्राउंड है देखो, ठीक है, एक ग्राउंड है। जो हुण इत्थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही, जो इधर एंगल 45 डिग्री का है तो इस साइड भी एंगल किन्ने होएगा? 45 डिग्री, ठीक हो गया। सो एंगल कितना लिया आपां? 45 डिग्री का। तो ट्रायंगल किहड़ी लई? बी ए ई। इस दे विच देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लवांगे क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस असी फाइंड करना है। थीटा इज ऑल्सो गिवन, दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ते कितनी हुंदी है? 1। (45 डिग्री), ठीक है, नॉट इक्वल cot 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस इज नॉट गिवन दैट इज ए बी तो परपेंडिकुलर साढ़े को 7 है, ठीक है। cot 45 डिग्री ते कितना हुंदा? हुण ओह हुंदा 1 इज इक्वल्स टू फिर आपां करांगे ए बी अपॉन 7 इस साइड जाके मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी की जो वैल्यू है वो साढ़े को कितनी आ गई? 7, ओके। हुण नैक्सट आपां जो ट्रायंगल है वो कंसीडर करांगे। उस दे विच आपां किहड़ी ट्रायंगल लवांगे? उस दे विच लवांगे डी सी ई, ठीक है, डी ई सी ट्रायंगल लई डी सी ई। इस दे विच भी देखो पहला आपां करांगे ई सी अपॉन डी सी, ठीक है, दैट इज कॉट 60 डिग्री। जो इत्थे साडे को बेस है उही बेस इन्ना ही इत्थे होएगा ना, ठीक है, इस तो घट या वध तो नहीं होएगा। सो कंसीडर करते हैं आपां ई सी अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी आएगी? एच माइनस 7। या तो देखो इसमें एच माइनस 7 ले लो या फिर 7 प्लस एच ले लो, ठीक है। आप इत्थे एच माइनस 7 ले लेना, यानी कि पूरी हाइट के विचों 7 माइनस कर लेना ताकि सानू हाइट ऑफ टावर पता चल जाए। हुण cot 60 की वैल्यू कितनी होंदी है? 1/√3, ओके। फिर तो इसनों आपां करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। जदों आपां इसनों क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे फिर साडे को आंसर कितना आएगा? ई सी इज इक्वल्स टू एच माइनस 7/√3। वैल्यू पुट दोनों इक्वेशनस ਨੂੰ इक्वेट करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ई सी किवें लिखोगे? ए बी की वैल्यू 7 कड्डी सी आपां इज इक्वल्स टू एच माइनस 7/√3। इस साइड जाके मल्टीप्लाई 7√3 इज इक्वल्स टू एच माइनस 7, ठीक है। वेरीएबल एक साइड कॉन्सटेंट एक साइड कर लें।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7√3 + 7 = h। 7 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ √3 + 1 = h। 7 ਹੁਣ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.732 + 1 h। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 1.732 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 2.732। 2.732 ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 19.124। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਾਵਰ। ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 19.124। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਤੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੇ ਬੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜੋਮੈਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ।